पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सोच लेता है कि हम 10th ग्रेड का मार्क्स का हिसाब से हम चूज करेंगे कौन सा स्ट्रीम. बट यू आर गोइंग टू चूज अ स्ट्रीम of commerce, but the child has an ambition or an aspiration or to become a doctor, but then you are choosing a wrong stream. You want to become a chartered accountant, but you're putting him into a BPC stream, biology, physics, chemistry stream. So likewise, if we don't make right choices, our career opportunities will be limited. उसके बारे में थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए. Okay. So I hope you are able to follow me. ये आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है ये सारे career planning. Show me a thumbs up, yes, no. You can type in your chat box. You understood the concept of career planning? Okay, I see few thumbs up on the screen. So चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है हमारे लिए. I have couple of things to present to you as well. We will talk about the art and science of career planning. We will talk about the art and science of career planning. Art and science का मतलब क्या होता है? So we will look at that in detail. I hope my screen is visible to everybody. I hope all of you can see my screen. Show me a thumbs up if you can. So at least some of you can unmute and confirm. That will be great, because when I'm in a presentation mode, I may not be able to see all your expressions there. Okay. Sonam ji, can you confirm if my screen is visible? Yes, sir, it is visible. Okay, perfect. So चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है हमारा ये आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या होता है. Art meaning it is be creative when you make your career choice. When I say be creative, it is very simple. Break the patterns, think out of the box, explore the various possibilities. Don't limit yourself only to becoming an engineer or a doctor or a chartered accountant or a pilot. They're all good careers, no doubt about it, but those are not just the careers. There are many careers available to us in this world. So be creative, think out of the box, break those traditional patterns, because there are many careers which have got a lot of opportunities and a lot of prospects. So keep in mind, art matlab creative at a very high level. Science का मतलब क्या होता है? Science का मतलब strategic रहना है. हमारे career choice के लिए don't be emotional, let us, if you are a parent attending this session, don't expect your child to choose a career which you want him or her to choose. And at the same time, as a parent, it is your responsibility to make sure they are not falling into a trap of a wrong careers and non-prospective careers. The careers doesn't have much prospects, or the fascinated ones. Children nowadays get very fascinated about whatever they see, watch on movies, or they watch in sports, or they watch in OTT. They think that they can make some careers what is shown in those movies. So we need to, as elders, as parents and career counselors and teachers, it is our responsibility to help our children with a clear understanding about how scientifically a career has to be chosen, strategically, not based on one movie experience, not based on watching somebody where only 1 in 1 crore person can become that kind of a career. Those may not be practical to everybody. So we have to be practical, strategic in that sense. यही होता है art and science. Be creative and strategic. चलो हम आगे बढ़ते हैं. उसके अंदर क्या है? आर्ट का मतलब पहली 4 चीजें है इसके अंदर. सेल्फ रिफ्लेक्शन एक है, इंट्यूशन दूसरा, तीसरा क्रिएटिविटी, एंड फोर्थ वन इज एडेप्टेबिलिटी. सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये, what am I, who am I, how am I, ये जानना है पहले. इसका मतलब क्या है कि what is my personality, what is my child's personality, what are the abilities of the child, what are the interests of the child, what a child can do naturally, a child can do well, what are the various interest areas. सबसे important है कि what personality does the child possess, and do the career suit to that personality. A child, for example, is an outgoing, extroverted person. Now you make him sit indoor and do work sitting in front of a computer. The child may not enjoy it, or the reverse way. तो पहले
किस तरीके के बच्चा है, क्या 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 टैलेंट्स है इसके अंदर, क्या क्या एबिलिटी है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है. दिस इज what happens, self reflection. Now how do you do self reflection? As parents you will know what kind of a child you're parenting, what type of a child, what personality you are parenting, but there are various assessments that we can help you with. You can find out this self reflection. दूसरी है कि इंट्यूशन. इंट्यूशन मतलब when a child talks about something, there is a clear indication they are very passionate about it. They're very passionate about it. Intuition, जो उसका, they pour out their heart, अंदर से बात होता है, यानी not a lip service. That's an intuition you can figure out. And creativity, of course, make sure don't restrict yourself with only a few handful of careers unless you are super clear you have done your options. And at the same time, don't expect everything to go as per plan. Don't expect everything to go as per your wish, even though after you make a career choice. Be flexible, be little bit adaptable. जैसे कि हमारा पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है, जो उस तरीके का हम फ्लेक्सिबिलिटी भी होना है हमारे प्लान में. मतलब कोई some surprise you have got after a couple of years you have implemented your plan. Be willing to adjust yourself according to the situation and move forward while your destination will still remain the same. Journey के अंदर थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो ही जाएगा. Be prepared to handle it. There will be speed breakers, there will be roadblocks, sometimes the road will be rough patches, sometimes there will be traffic jam. जैसे कि career planning में भी बहुत सारे होता है. Be ready to accept and then advance from there. So this is what we call it as the art of career planning: self-reflection, intuition, creativity, and adaptability. चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अगला क्या है, science. The science of career planning. The art. Yes, somebody has a question. Okay, so art is very subjective. A person to person change होता है. Please go on mute. Art का मतलब है कि person to person change होता है. Personality of one person is not same as the other person. The thought process of one person is not the same as the other person. The intuition of one person may not be same as the other person. So the art is very individualistic. The art is very subjective to an individual. अलग-अलग person को अलग-अलग personality होता है. So art is very subjective. But लेकिन science का मतलब यह है कि science is common for everybody. Science is very objective, very strategic. जैसे कि careers के बारे में research करना है, that will be same for everybody. Only thing it matters. Sonam ji, can you help some of them to get Sure, sir. Sure, I'll do that. Yeah. Okay. So science के अंदर research है. ये research का मतलब क्या होता है? Careers के बारे में research करना है. The careers को जो जानकारी है सबको एक ही रहता है. But which career you choose that may vary. Analyze करना है किस career को कहाँ future है कि नहीं, वो trending में है कि नहीं, what are the perspectives of this career. उस level तक analysis करना है, कुछ parameters के बारे में analyze करना है, उसके हिसाब से goal setting करना है. What are my milestones in this career? 10th के बाद क्या करना है, 11th और 12th में क्या क्या subject पढ़ाने का है, उसके बाद कौन सा courses करना है, long term goal, medium term goal and short term goal. Now वो destination reach करने के लिए, lawyer बनने के लिए, engineer बनने के लिए, chartered accountant बनने के लिए, pilot बनने के लिए, doctor बनने के लिए क्या क्या skills develop करना पड़ेगा. खाली वो entrance examination या 11th 10th 12th grade marks सफिशिएंट हो जाएगा कि नहीं. उसके अलावा डिजाइन, सोचो कि फैशन डिजाइनर बनने के, इंडस्ट्रियल डिजाइनर बनने के, ऑटोमोबाइल डिजाइनर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स डेवलप करना है. हमारे साथ एक पोर्टफोलियो रखना चाहिए. ये बहुत चीजें होते हैं. अलग अलग कैरियर्स के लिए अलग अलग स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा. आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्टेड, मीडिया, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन में जाने का जो है उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करना है. ये होता है स्किल, सॉफ्ट स्किल कहा जाता है उसको. एंड एट द सेम टाइम नेटवर्क, लोगों से मिल जोड़ना है कि क्योंकि बातचीत करना है. आप अपना सीनियर्स के साथ बातचीत करना है, अपना पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ,
वो करियर में जो प्रोफेशनल्स होता है उसके साथ बातचीत करना है। इसी के हिसाब से हमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक चीज है कि रिसर्च और एनालिसिस ऑन इंटरनेट या कोई भी चीजें उपलब्ध है आपके लिए, बट लेकिन ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पकड़ने के लिए जो बच्चा इसी रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहा है आपसे पहले ही, उस बच्चे से मुलाकात कीजिए। जो टीचर है उसका उस चीजों में एक्सपर्ट है, वो करियर गाइड है, करियर काउंसलर है, उसके साथ बातचीत कीजिए। वो नेटवर्किंग जरूर होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का। हर एक करियर के लिए, मैक्सिमम एकेडमिक ओरिएंटेड करियर्स के लिए एजुकेशन जरूरी होंगी। नॉन एकेडमिक ओरिएंटेड के लिए ट्रेनिंग जरूर, लाइक स्पोर्ट्स करियर, म्यूजिक करियर, आर्ट्स करियर, कुछ चीजों के लिए एजुकेशन इज नॉट ए प्रायोरिटी, बट ट्रेनिंग प्रायोरिटी होंगी, कोचिंग, ट्रेनिंग। एंड ऑफ कोर्स ये सारे रिसर्च, एनालिसिस, अपना गोल्स, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, सारे एक पूरा प्लान में डालना है, सारे एक प्लान के अंदर रखना है। सो दैट इज द साइंस ऑफ career guidance. So I hope it is clear. The art is about individual preferences. Science is about, based on that, research करना है, analyze करना है, goal set, skill development, networking, education and training and planning. So हम करना क्या है? इन दोनों के बैलेंस करना है। मेक ए बैलेंस बिटवीन द आर्ट एंड साइंस। खाली साइंस के हिसाब से करियर चूज ना करो, या नहीं तो आर्ट के हिसाब से चूज ना करना है। दोनों बैलेंस करना है। यू नीड टू नो योर सेल्फ रिफ्लेक्शन, हु यू आर, व्हाट यू आर एंड हाउ यू आर, एंड यू आल्सो नीड टू नो व्हाट इज योर इंट्यूशन। उसके साथ साथ रिसर्च करो, एनालाइज करो, तभी एक करियर चूज करो। That is the art and science of career, my friends. I hope it was useful. And I will pause for a moment here and then see if you have any questions. आप टाइप कर सकते हैं अपने चैट में, या तो अनम्यूट करके you can ask questions. I have some more things to to share with you, but before that I want to give a moment and then see if you want to. Are you enjoying it? कैसे लग रहे हैं आपको? पसंद आ रहा है कि कुछ चीज समझ में आ रहे हैं? कैसे? Just show me a thumbs up or say yes, no. ये sensible, is it making sense to you? कुछ तो बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। Okay, I see a few thumbs up. Okay, very nice. चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि let me show something to you. I'm sure some of you would have gone through it, but I want to show a short video to you all. Okay, a short video to you all, and let us see. सोनम जी, आप इतना बताइए कि साउंड आ रहा है कि नहीं। मैंने शुरू करने वाला है, आप अनम्यूट Sure, करके, या just tell me if sound is coming there. Yeah, sound is Okay, coming. चलिए। Hello, ma'am. Where's the dress section? So I came last week, so I saw something. I just came to pick that up. Ma'am, we don't have any dresses today. It's black t-shirt. Want to try? Please, ma'am. एक बार try तो कर लीजिए, ma'am. So you don't have anything else except black t-shirts? बात है सारी शोरूम में खाली t-shirt। भैया मरून ब्लेजर मेरे साइज में एक्सेल दिखा दीजिए। I'm looking for jeans, shirt. I have a voucher जो आज expire हो जाएगा। We've given our jeans for alteration yesterday. Yeah, I'm looking for white formal shirt. Blazers तो अवेलेबल नहीं है। Black t-shirts है सर। आज सिर्फ black t-shirt है। Black and just XL size. Yeah. क्यों? शर्ट दिखा दो, टाई दिखा दो। कल तो ये नहीं था, आज अचानक। तो ये वाउचर का मैं क्या करूंगी फिर? सर बट बहुत अच्छी टी-शर्ट। Once you try it, you will definitely buy it. जीन्स तो मिलेगा ना हमारा। मैम आप हमें हमारी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि क्या हमें क्या करना चाहिए। भैया क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? नहीं लेनी ब्लैक टी-शर्ट। Where's the manager? Is your manager here? Can you call the manager? अपने मैनेजर को बुलाइए प्लीज। He's the manager. For the whole store, I have only one. पहन सकते मीटिंग में मैं क्या करूं? बिल्कुल नहीं, let's go नहीं now. नहीं सर। हेलो मैम, हेलो सर, सॉरी यू आर टू फेस दिस, बट आपको आपके कपड़ों में चॉइस नहीं मिली तो आपको इतना बुरा लग रहा। सोचिए ना मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे मेरे करियर के लिए चॉइसेस नहीं मिलती।
I want to be a guitarist, but मेरे parents नहीं चाहते कि मैं वो करूँ. मेरे भैया को टेनिस बहुत पसंद था. मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अलाउ ही नहीं One किया. of my friend, he's very good in maths, so my parents are always comparing him with me. क्या सबको 90% आना जरूरी है? Does everyone need to be a topper? अगर मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो मुझ पे 90% लाने का प्रेशर क्यों है? जैसे आप सबको हर चीज की चॉइसेस मिलती है, मुझे भी मेरे करियर के लिए चॉइसेस मिलनी चाहिए. बात तो सही है तुम्हारी बेटा. आपको क्या बनना है बड़े होके? मुझे एक सिंगर और एक डायरेक्टर बनना है. So you will be a director who sings. That's amazing. रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है. I like his pull shot. मुझे क्रिकेटर बनना था तो उस टाइम मुझे क्रिकेटर नहीं बनने दिया. आप वही बनना जो आप चाहते हो. It's okay. So this is all because of you? Yes. ये एक टी शर्ट सबको फिट नहीं होगी ना, तो सबको डॉक्टर बनना जरूरी है. So, सबको पसंद आया वो वीडियो? Were you able to relate yourself with that video? Yes or no? Show me a thumbs up. You can unmute and say something. Yes, it was very good, sir. It was very relatable. Yeah, you would have seen this video in some platform or the other, but I thought it is relevant for us to see here since there's a lot of parents over here. So now let's get going. I wanted to talk about few careers. Now we said that every child deserve a career. So now let's talk about few careers, not those only जो traditional के हिसाब से, not just limiting only them, but let's look at it. Okay, I'm sharing my screen again. Let's see, typically this is called as careers after 10th grade and 12th grade. And I'm sure most of us would be aware, but I'm going to talk about few of them which are not so known as well. Let's get going. Typically, a CBSE student after 10th will get to choose 12th plus 2 streams, science with maths, science with biology, commerce with maths, commerce without maths, humanities. यही 4-5 चीजें होता है, but थोड़ा बहुत तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, साइंस विद मैथ्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाएगा, या बाईपीसी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट मिलने के लिए ऑप्शंस है सीबीएसई के अंदर. जैसे कि कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बट मोटा मोटा ये 4-5 स्ट्रीम ही होंगे 10th के बाद बच्चों के ऑप्शन. एंड सिमिलरली इट गोज विद द स्टेट सिलेबसेस आल्सो. More or less it will be the same, but little bit of name changes. They will be called as a different names in the state syllabuses. But उसके अलावा ये भी होंगी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 ईयर का होता है, कि वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, जॉब बेस्ड ट्रेनिंग, जैसे कि ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होता है. And there are many, as you see on your screen, there are many other skill based programs 6 months से लेके 36 months तक है, कि बहुत सारे programs है, especially for some of them who are willing to pursue careers in a different line, not so academic oriented careers के अंदर उसको interest नहीं है, कुछ और चीज के लिए interest है, like for them it is National Institute of Open Schooling. ये सब बहुत काम आएगा उन लोगों के लिए. चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अभी सोचो कि बच्चे एक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस विद मैथ्स ये स्ट्रीम चूज किया. नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अ चाइल्ड हु चूज मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री? सो टिपिकल चॉइस इज द इंजीनियरिंग. जो बच्चा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप चूज करता है वो उसके लिए इंजीनियरिंग जरूर होगी. जेईई लिखना है कि या नहीं तो बिट्स फिलानी का एग्जाम लिखना है, जैसे कि वैसे ही होता है. तो देखिए आप इंजीनियरिंग के अंदर 100 के ऊपर बहुत ब्रांचेस भी हैं. तो I put in some of them here like mining, marine, genetic, plastics, dairy, technology, food processing engineering, agriculture engineering, production, बहुत सारे हैं. So this is not an exhaustive list, but this is an indicative list. Okay, and this is the most common, engineering is the most common sort of like geoinformatics, cell and tissue, biosensor technologies, propulsion engineering,
न्यूरल इंजीनियरिंग, बायो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट खाली इंजीनियरिंग ही नहीं है, बहुत सारे हैं। इफ नॉट इंजीनियरिंग देन व्हाट, यहाँ पे है एक्चुएरियल साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी है। एक्चुएरियल साइंस का मतलब ये है कि इसके उसके अंदर जो इंश्योरेंस रिस्क प्लानिंग करने वाला है उसके लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जरूर चाहिए। सो जो मैथ्स का जो इंटरेस्ट है वो एक्चुएरियल साइंस में जा सकता है, उसके लिए बहुत डिमांड है अभी आज के दिन इंडिया में, बाहर में भी। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, आर्किटेक्चर, एविएशन, केमिस्ट्री में मेजर कर सकते हैं, केमिस्ट्री में रिसर्च में जा सकता है। उसके अलावा ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन डेटा साइंस, एनडीए में, आर्म्ड फोर्सेस में, डिजाइन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी जा सकता है कि जो बच्चा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप लेता है, सब सोचते हैं वो इंजीनियरिंग करना है, नहीं तो ऑप्शंस कम पड़ेगा। वैसे नहीं है, इंजीनियर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का स्ट्रीम को बहुत सारे ऑप्शंस रहता है, एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, एंड मेनी मोर। एथिकल हैकिंग है, मर्चेंट नेवी, फोरेंसिक साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफर करता है मैथमेटिक्स, बी स्टैट्स और बी मैथ्स कहता है उसको, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है उसको। प्लानिंग के अंदर भी जा सकता है, डिजाइन के अंदर भी आ सकता है, न्यूक्लियर साइंस, न्यूरल साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च, फिजिक्स मेजर भी कर सकता है। सो मेजरली द अदर देन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यही होता है आपका स्क्रीन में जो दिखाया जा रहा है आपको। बैचलर ऑफ साइंस एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। उस तरीके का बहुत सारे ऑप्शंस होता है, उसमें भी बहुत स्पेशलाइजेशंस भी रहता है। बच्चों का इंटरेस्ट के हिसाब से वो ये कोर्सेज के अंदर स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है कि उनका जो पर्सनालिटी जिसमें ज्यादा सूट होता है वो उसी के हिसाब से ले सकता है एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स आफ्टर 12th का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बच्चा पीसीबी या मेडिकल स्ट्रीम का कोर्स, मेडिकल स्ट्रीम लिया 10th के बाद, क्योंकि वो लाइफ साइंसेस में जाना चाहता है या हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में जाना चाहता है, सबसे पहले तो है मेडिसिन मोस्ट एस्पायर। जो बच्चा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ग्रुप लेने का मन है, वो सबसे पहले कि एमबीबीएस नीट एग्जाम लिखने हैं, एमबीबीएस क्लियर करना है, उसके बाद एक स्पेशलिस्ट बनने का है। उसके साथ साथ भी मेडिसिन के अंदर ये भी मेडिसिन ही है, डेंटल सर्जरी है, डेंटल है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी, बहुत सारे हैं। सो देयर आर 6 डिफरेंट मेडिकल डिसिप्लिन्स, नॉट जस्ट एमबीबीएस। एलोपैथी नहीं है, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, डेंटल, ये सारे भी डॉक्टर्स हैं। बच्चों का इंटरेस्ट के हिसाब से, उनका एस्पिरेशन के हिसाब से कोई किसी के अंदर जा सकता है। सबका एक ही होता है कि नीट का थ्रू जाना ही पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग। बट इज दैट ऑल मेडिसिन? इज दैट ऑल? नो, इफ नॉट मेडिसिन देयर आर मेनी अदर करियर्स। यहाँ पे देखिए कि एलाइड मेडिसिन कहा जाता है उसको। एलाइड मेडिसिन को एमबीबीएस करने के लिए या नीट लिखने का जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी है, ऑडियोलॉजी है, रिनल एनालिसिस, ऑप्टोमेट्री, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे हैं जो डॉक्टर उसके जॉब 100% करने के लिए बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर, दिस एलाइड मेडिसिन मेक्स a lot of difference. Like जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी plays a crucial role. These are all very good careers and they make good money. They give good money as well. And of course there are बहुत सारे careers अभी है, as you see on your screen. बॉटनी में मेजर कर सकते हैं, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, biomedical sciences, marine biology, psychology, physiology, food and agriculture, and उसके अलावा भी food science, forensic science, agricultural science, virology, immunology, pharmacy, nutrition and dietetics, veterinary sciences। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है बायोलॉजी स्टूडेंट को। चलो हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट वन इज अ कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एक्चुअरियल साइंस। जो बच्चा कॉमर्स विद मैथ्स का स्ट्रीम लेता है वो एलिजिबल रहता है एक्चुअरियल साइंस। एक्चुअरियल साइंस के लिए चाहिए
मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट बन सकता है, टैक्सेशन में मेजर कर सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पढ़ाई कर सकता है, कॉमर्स में फील्ड में जा सकता है, लॉ, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट के अंदर स्टैटिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारे बहुत सारे करियर्स हैं। आप इतना तो समझ लीजिए, जो इंडिकेटिव लिस्ट में जो 1 घंटे के अंदर जितना कर सकता है उतना ही कर रहा हूं मैं, बट लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। करियर्स बहुत सारे हैं, बहुत हजारों करियर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन यू सी सम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए चार्टर्ड में सर्टिफाइड मैनेज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बहुत सारे करियर्स। एंड कॉमर्स के साथ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस एनालिटिक्स सबसे वेरी ट्रेंडिंग और फ्यूचरिस्टिक है, और बिजनेस स्टडीज भी ट्रेंडिंग करियर है। ये सारे बहुत अच्छा करियर्स है। एंड आगे बढ़ते हैं कि उसके अंदर इवेंट मैनेजमेंट भी है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, जो कॉमर्स विद मैथ्स या कोई भी है, एनडीए भी लिख सकते हैं कि आर्म फोर्सेस के अंदर जाने के लिए, डिजाइन, मास कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, रिटेल, सप्लाई चेन, फाइनेंस, मार्केटिंग, वो बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशलाइजेशन है। आपका राइट साइड का जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वो रिटेल एंड सप्लाई चेन, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे बीबीए के अंदर स्पेशलाइजेशंस होंगी। एंड चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर ट्रेडिशनल बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का डिग्री होता है कि नहीं, तो बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कोर्सेस होंगे। उसके अलावा बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ डिजाइन, लॉ के लिए बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी भी है, वो भी ऑप्शंस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के अंदर क्या क्या होता है? एवरीबडी थिंक्स दैट इज इट रियली वर्थ ह्यूमैनिटीज, क्योंकि सब लोग या मेडिकल स्ट्रीम या नॉन मेडिकल स्ट्रीम का पीछा पड़ जाता है, नहीं तो कॉमर्स। बहुत कम लोग ये ह्यूमैनिटीज में आ जाता है कि, बट लेकिन देयर आर पीपल हु आर वेरी फैसिनेटेड विथ ह्यूमैनिटीज ऑल्सो। इसके अंदर क्या क्या है? लॉ है, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बन सकता है, सेफोलॉजिस्ट भी बन सकता है, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में बीए इन साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया, फॉरेन लैंग्वेजेस, लिटरेचर, इवेंट मैनेजमेंट, सोशल वर्क is a big thing for humanity students, सोशल वर्क या सोशल सर्विसेज, बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा इसमें अंदर। और चलिए फिलोसफी, मीडिया स्टडीज, लिबरल आर्ट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, एजुकेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। वैसे बहुत ऑप्शंस है। जैसे कि मैंने बोला, ये सारे केवल इंडिकेटिव लिस्ट है, 1 घंटे के अंदर जितना कर सकते हैं उतना ही बता रहा हूं मैं, हमारे टाइम के वजह से, बट लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस है, करियर्स, हम बातचीत कर सकते हैं आगे। सो इसमें ह्यूमैनिटीज के अंदर पहले चीज जो होता है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। उसके अलावा बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ मास मीडिया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स, बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड एलएलबी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। वैसा बहुत सारे ऑप्शंस अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस होता है। Okay, so I will pause here and I have a question to all of you before you can start asking questions. मेरा क्वेश्चन सवाल ये है कि according to you, which undergraduate program has got more enrollments in India? Is it engineering, medicine, BA, BCom, BSc? कौन सा undergraduation course has got more enrollments? Any idea? You can type in your answers in the chat box. BA, BCom, BSc सारे कहाँ जा रहा है इधर? ओके, ओके, BA या anybody engineering, BTech, BE? Okay, nobody says BTech or BE, but ये है कि fact ये है, there are 33 over 30 lakh students get enrolled year over year into the BA program, which is one of the top enrolling and top undergraduates in whom we produce. उसके बाद BCom है लिस्ट में, उसके बाद BSc, उसके बाद ही आ रहा है कि BTech और BE। इंजीनियरिंग सबसे पहला है BA, उसके बाद BCom।
Okay, so that is what we have for today. We talked about the art and science of career. We talked about how to plan a career. जैसे कि holiday planning करते हैं हम, वैसे ही हम career planning भी कर सकते हैं कि. And of course, we looked at some of the careers in that given time. Now I'll open it up for questions and then see what questions you have. How did you like the session? What questions you have? And Sonam ji, you want to add something before the questions come in? Yes, I'll like to introduce one of my team member, Shraddha. She is the education counselor in ECAL Academy. So she'll like to brief the parents a little bit about the subscription plan. How does it work and what are the features, what are the benefits, and especially what benefit today they are going to get in this session. Meanwhile, parents can come in for any question. Meanwhile, Shraddha comes in and takes. Yeah, please type any questions to you in the chat box, or you can unmute and ask questions. I'll be more than happy to address them. Or please share your videos. Please switch on your videos. We'll be more than happy to interact with you. So what are the job opportunities for the other than engineering? Everyone is now saying engineering and doctor is not essential. But when we go for the job opportunities, engineering लोग की job मिलना आजकल मुश्किल हो गया. So if we go beyond BCom का okay है somewhat, they are going into accountancy department, and you talk about so many humanities courses, and if I don't think so they go to have any good job opportunities. आजकल बच्चे is not learning for, especially kids are ready to study, but parents are insisting that so you have to earn. अल्टीमेटली नाउ पैसा अर्निंग तो बहुत जरूरी हो गया है दुनिया में. सो बाकी कोर्सेज में क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज आई कैन सी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द गूगल इटसेल्फ, बट व्हेन आई गो एंड सर्च फॉर द जॉब्स, वो जॉब्स तो आई कुडंट हैव अ टिक वेदर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट और इज द जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर. थैंक यू सर. Absolutely, Jayanti ji, right question you asked. I must, with your permission, let me say that the awareness is not that great when it comes to non-medicine or non-engineering related careers. That is the biggest curse here, because they are like, engineering coaching, NEET coaching, JEE coaching. There's a lot of money involved in it. That is why those two careers are getting over publicized in our country. To encash that, that is the main reason you see only those two everywhere today. Even Google search criteria is also, it is all a paid promotion. Your search criteria results are also paid. Not whatever you get, everything is not a reliable source. That is a big issue. Information reliability has become a big issue. But yes, it is lack of awareness, and through this webinar our objective is also to create that awareness, so that we are here to help you in that research, in that prospects. But at a high level, I can tell you, with having spent so many years in this mentoring students across the country, I can tell you there are a lot of prospects for careers other than medicine and engineering. Be assured. Specifically, we can talk about with you and your child, what are your aspirations or what are your expectations and what is that you are wanting to explore. And then we can help you in a one-on-one scenario. We'll be more than happy to have that conversation with you, Jayanti ji. But at a high level, be assured there are very prospective, there is high earning potential than an engineer or a doctor earns, even for humanities careers or for the commerce careers. Commerce is not just about accounting. There's a lot beyond accounting. In fact, accounting jobs are getting automated. So please be aware, entry-level accounting jobs are getting automated. There's a technology which is overtaking and giving an opportunity for more new type of careers. Hello. Thank you, sir. Thank you. Okay, and there was a question there in the chat box, Mishra ji, new career option for students in the context of challenge AI. AI is going to be part of our life, sir. Mishra ji, it is going to be a reality sooner or later in every aspect of our life. And the future is going to be man plus machine, and man should have a lot of flexibility to accept machine working next to you. So
When it comes to the technology, AI is more like a STEM oriented career. When I say STEM, science, technology, engineering, mathematics, that's a foundation for this artificial intelligence. And that the evolution that is taking place in AI in the last 15-20 years, and else it is going to happen in the next 25 years, is going to be significant. So today, specialized all those software engineers will have to transform themselves into a prompt engineers in the next 5 to 10 years time. That is where we are moving towards. Today there are, let us say, 10 lakh software engineers in the country. Imagine all of them have to retitle them, reskill themselves into prompt engineering, making that generative AI tools work for them. You don't need a human being to code in the near future. It is the artificial intelligence which is already doing some of the job, which is going to take over that. But human being has to transform in making that AI work. It is something similar to early 1970s when computers were introduced to India. Everybody thought that the jobs will be lost to computers. But fact is, computers have given more jobs. Now AI is also going to give more jobs. So artificial intelligence, machine learning, robotics, mechatronics, data science, information security, cyber security, Internet of Things. In the technology area, these are some of the trending career options, Mishra ji, if that helps to set some context to you. Equal Academy. And Shraddha ji, are you ready? Yes, hi sir. Am I audible to you? Yeah, loud and clear. You can take over and we will wait, in the chat box to receive other questions. But over to you. I'll pause here. Thank you so much, sir. First of all, sir, I would like to share my screen. Yes, please. Go on. Okay. First of all, I would like to thank Mr. Ramakrishna, sir. Thank you for sharing all your details regarding the education to our respected parents and their students. And सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि. And now I would like to start our Equal Academy. What Equal Academy is going to provide you from the student mentorship program, right? So सबसे पहले हम लोग जब स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हम उनका लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें बच्चे का जो एकेडमिक्स का गैप है उसका एनालिसिस किया जाता है. उसका मतलब ये है कि बच्चे का एकेडमिक्स कैसा है उनके मेजर सब्जेक्ट्स में, वो उससे हमें पता चलेगा, जो कि MCQ बेस्ड टेस्ट रहती है 30 to 40 मिनट्स अराउंड की. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये होता है कि बच्चे का जो करियर ऑप्शंस है वो क्या हो सकता है बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी, क्योंकि जैसे हर बच्चे का क्या रहता है, अलग अलग पर्सनालिटी रहता है, इंटरेस्ट ऑफ लेवल अलग अलग होता है. तो एप्टीट्यूड टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि बच्चा कौन सी फील्ड में जा सकता है, किसमें उनका ब्राइट फ्यूचर है. नेक्स्ट, करियर काउंसलिंग सेशन जो रहता है उसके अंदर हम लोग पेरेंट्स के साथ बच्चे का एक डिटेल रिपोर्ट शेयर करते हैं, जिसके अंदर जो उनका एप्टीट्यूड और डायग्नोस्टिक हमने जो टेस्ट लिया है उसका डिटेल रिपोर्ट शेयर करेंगे. एंड वी विल ब्रीफ यू, राइट, कि बच्चा का क्या रिपोर्ट आया है, इन विच फील्ड दे कैन गो, राइट, वो सारी चीजें. नेक्स्ट है करियर काउंसलिंग सेशन 2, जिसके अंदर हम पेरेंट्स के करियर रिलेटेड क्वेरीज, राइट, क्योंकि एज एन पेरेंट्स आज आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मेरे बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है या हमें उसको इसमें भेजना है, राइट, तो हम किस में उसको भेजें. तो ऐसे आपके अंदर बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके भी अलग अलग जो फील्ड होती है उन सबको लेके आपके दिमाग में क्वेरीज होंगे. तो दैट वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट. प्लस हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि क्या बेस्ट रहेगा आपके चाइल्ड के लिए. करियर पाथ प्लानर, राइट, जैसे सर ने कहा था, प्लानिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. अगर आपका प्लानिंग सही होगा तो दैट इज 100% श्योर कि बच्चे को उसके डेस्टिनेशन तक जो पहुंचना है वो पहुंचेगा ही. सो हम लोग आपको पूरा एक करियर मैप कैलेंडर प्लानर बना के देंगे, जो कि हमारे जो एक्सपर्ट करियर काउंसलर है उनके थ्रू, राइट. मतलब ये आपको क्लियर रहेगा कि बच्चे को क्या कैसे कब करना है, राइट, बिकॉज प्लानिंग इज मस्ट. कोर्स रिकमेंडेशंस, मतलब कि
बच्चे का जो एकेडमिक्स का रिपोर्ट आएगा, जो आपको पहले मैंने बताया डायग्नोस्टिक है, एप्टीट्यूड का है, उसके एनालिसिस के बेस पे बच्चे अपना करियर गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट? उसके जो कोर्सेज होते हैं, कोर्स लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रिज्यूम बिल्डिंग, राइट? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे भी अभी जाते हैं तो रिज्यूम इज मस्ट, लाइक रिज्यूम में क्या रहता है, आपका पूरा बैकग्राउंड शो होता है। तो हम लोग आपको एक्सपर्ट के थ्रू रिज्यूम बिल्डिंग करना पूरा सिखाएंगे। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मीन्स लाइक आप जब भी हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको पता है आजकल पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, राइट? क्योंकि जितने अच्छे तरीके से अब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा करियर में आपके गोल को अचीव करना। सो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू हम आपको पूरा पोर्टफोलियो बिल्डिंग सिखाएंगे फॉर योर हायर एजुकेशन। स्पेशल डिस्काउंट ऑन फुल ईयर एकेडमिक कोर्सेज, मतलब कि आपके जो फुल ईयर एकेडमिक कोर्सेज है, वी अश्योर यू टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट थ्रू 20% डिस्काउंट। हायर एजुकेशन मेंटरशिप, राइट? कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने आपका फील्ड सिलेक्ट किया, तो फील्ड सिलेक्ट करने के बाद में ये रहता है कि हम कहाँ एडमिशन लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो एम आई ऑडिबल एवरीवन? हेलो? Yes, Shraddha, you are audible. Yes, okay, thank you Sonam. Yes, audible. या तो करियर गाइडेंस में ये रहता है कि बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएगा बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो। क्योंकि आपको भी पता है कि हमें एडमिशन कब मिलता है, हमारा जो क्राइटेरिया है, हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का एडमिशन क्राइटेरिया होता है, राइट? सो वी नीड टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया टू गेट द एडमिशन। तो हर एक बच्चे का जो पोर्टफोलियो है, रिज्यूम है, सबका अलग अलग है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, प्रोफाइल अलग है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बच्चा जा सकता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंटर्नशिप। जैसे कि इंटर्नशिप इसलिए होती है ताकि आप जब बुकिश नॉलेज ले रहे हैं, आप सारी चीजें सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, क्योंकि बट ऑब्वियस हर एक बच्चे का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होता है। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स है, कोडिंग है, साइकोलॉजी है, डिजाइनिंग पार्ट है। तो हम लोग आपको उसका इंटर्नशिप देंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। इंडस्ट्री मेंटरशिप सेशंस, जिसके अंदर हम आपको अलग अलग जो इंडस्ट्री होती है, राइट? क्योंकि सबका फील्ड अलग, इंटरेस्ट अलग है, तो उस हिसाब से बच्चे का जो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री है उसमें हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स देंगे। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी उतना ही मायने रखता है। कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस, राइट? फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस, जैसे कि आपको पता है कि हमें जितना नॉलेज है, हमें जो भी आता है, उस चीज को अपने पर्सनालिटी में ढालना, उसको डेवलप करना और उसको रिप्रेजेंट करना, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है एक स्टूडेंट के लिए, उनके करियर के लिए। तो हम लोग आपको कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। डाउट क्लियरिंग कोर्सेज सेशंस ऑन ईगल एकेडमी, लाइक आपको पता है कि बच्चे के एकेडमिक पार्ट्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के उनको डाउट्स होते हैं, राइट? ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो बच्चे का डाउट क्लियर होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे का डाउट क्लियर होगा तब जाके वो बोर्ड्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, राइट? एंड वी ऑल आर विशिंग कि हमारे सबके जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक अच्छा रिजल्ट आए। तो हम लोग एज एन ईगल एकेडमी हम लोग डाउट क्लियरिंग कोर्सेज भी, सेशंस भी रखते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड बूट कैंप्स, बूट कैंप्स में हम लोग बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं फॉर एक्सप्लोरिंग देयर इंटरेस्ट, राइट? क्योंकि हर एक बच्चे का लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो ईगल एकेडमी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द बूट कैंप्स फॉर एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। यूनिवर्सिटी फेयर, यूनिवर्सिटी फेयर में हम लोग आपको एक मौका देंगे जहां पे 100+ नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो वो यूनिवर्सिटी फेयर का आपको एक एक्सेस करने का चांस मिलेगा टू गेट द एडमिशंस, राइट? तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हैं, तो ये सब कुछ आपको ईगल एकेडमी प्रोवाइड करता है टू
reach to their destination, as sir already told you, right, कि destination तक पहुंचने के लिए हमारा journey, planning, सब चीजें का contribution होता है, मतलब इतना ही वो मायने रखता है. So these are the stages: diagnostic, aptitude, career counseling, training, portfolio building, resume building. जो मैंने आपको सारी चीजें explain की, that is going to be a part of your journey to reach your destination. So आई होप आप सबको ये थोड़ा क्लियर हुआ है. इफ यस, प्लीज आप लोग मुझे आपका ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं. हेलो. Yes, if any questions, any query here, parents can ask. यस, अगर आपको क्वेरी नहीं है तो मैं नेक्स्ट आपको एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ, तो दैट आई कैन मेक टू एवरीवन. थम्स अप भी आप मुझे दे सकते हैं चैट बॉक्स में. अगर आप अपना ऑडियो ऑन नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप. Okay. First of all, thank you everyone for listening me. And secondly, के हम लोग आपको जो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एप्टीट्यूड जो हमारा टेस्ट है, उसका हमारी टीम ने आपके साथ एक लिंक भी शेयर किया है, जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 आप अपने बच्चे को दिलवाइए, क्योंकि उससे ये होगा ना कि हमें हमारे बच्चे का पता चलेगा कि वो एकेडमिक्स पार्ट में कैसा है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. क्योंकि आपके लिए भी वही इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे का करियर ब्राइट हो, राइट. फॉर दिस ये टेस्ट बहुत ही उतना मायने रखता है. नाउ स्पेशल अनाउंसमेंट ऑन दिस शुभ नवरात्रि. हम लोग जो भी आज यहाँ पे पेरेंट्स अवेलेबल हैं, we are going to give you a 25% discount on our student mentorship program packages. जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग बच्चे के स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए पैकेजेस हैं, 1999, 4999, 999. सो इसके अंदर हम लोग आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट देंगे, जिसका जो कोड है वो भी मैं आपको, ये देखिए मैंने आपको चैट बॉक्स में शेयर किया है. यस, मेरी टीम ने भी ऑलरेडी कर दिया है. थैंक यू सो मच माय टीम मेंबर्स. तो ये कूपन कोड के थ्रू आपको 25% आज के दिन में डिस्काउंट भी मिलेगा इफ यू आर गेटिंग एनरोल्ड टुडे, राइट. तो ये एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के सबके पास एक चांस है कि आप अपने बच्चे को अपार्ट फ्रॉम स्टडी स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम आप करवाएं, राइट. बिकॉज ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है कि नहीं आपको करवाना ही पड़ेगा, बट येस आई वुड लाइक टू से कि ये बहुत ही जरूरी है. जिस तरीके से बच्चे का एक होता है ना, आप ट्यूशन क्लास में रखते हैं टू गो फॉर देयर कोचिंग एंड एवरीथिंग, इन द सेम मैनर ये मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको उतना ही हेल्प करेगा टू रीच एट डेस्टिनेशन. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो प्लीज आप आपका ऑडियो ऑन करके प्लीज फील फ्री टू आस्क अस. इवन रामाकृष्ण सर, ही इज आल्सो विद अस. तो अगर आपको करियर के रिलेटेड कुछ पूछना है तो ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू like brief you everything. Thank you so much everyone. Sonam, over to you. Thank you, Shraddha, so much. So here the aptitude and diagnostic tests are free for everybody. Agar it's not compulsory that this is only for career mentorship buying plan. You can definitely go for these two tests, and this will give you a proper idea about what your child is standing right now, where he is standing, where he is lacking. So these two tests are free. So parents can go on this link given in the chat box, and the student can give this test. Yes, now it's open for questions. Any questions you have for sir? Parents? We would be glad अगर आप सब लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं आपको समझ में आया है जो सर ने आज आप सबको एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आप लोग पूछिए, तो हमें भी ये आइडिया रहे कि नहीं हाँ आप सबको थोड़ा समझ में आया है ये जो प्रोग्राम है हमारा. अगर अभी कोई विश लिस्ट, हमारा जो कूपन कोड है, अगर आप करके आप कोई भी अगर स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम आप ले रहे हैं, तो प्लीज डू लेट अस नो. अगर आप कहीं पे भी अटक रहे हैं, वी वुड हेल्प यू. ओके, Yeah, I shared सो a mobile number also in the chat box.
Ma'am, please share the mobile number so they can get in touch with us. Yes, it's there in the chat box. Hmm. Oh, okay, that's it. So over to you, sir. Okay, looks like there are not many questions. So thank you so much for your time, everybody. And if you have any questions, please do reach out to us. We'll be more than happy to help you and extend our support to you all. Thank you so much for joining us, and I hope it was useful. Have a wonderful day. Thank you so much, And of sir. course, happy Navratri to all of you.